Before we start, let's turn to the scripture portion for this morning, chapter 4 of the book of Genesis, verses 1 to 7. And may I ask Simar if you could read that for us? So for today's morning portion, we have from Genesis 4, 1 to 7. Let's look to our Bibles and read. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man with the help of the Lord. And again she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground. In the course of time, Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground, and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering, but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell. The Lord said to Cain, why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it. Thank you. Praise God for this beautiful morning. आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। We start chapter 4 today of book of Genesis. आज हम लोग उत्पत्ति उसकी चौथी अध्याय को की शुरुआत कर रहे हैं। I must admit, I must testify that it's been one great journey for me, covering from 1 to 3 of book of Genesis. पहली अध्याय से तीसरी अध्याय में जो बातें मैंने सीखी हैं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही अत्यंत खुश हूं और मुझे बिल्कुल अचरज करने वाली बातें हैं। So in chapter 3 we looked at how sin dehumanizes humanity. और हमने तीसरी अध्याय में देखा पाप किस प्रकार मनुष्य को हैवान बना देती है। And this chapter 4 we're going to talk about the devastation of sin which continues to spread. It's virulent and it's intraceable that it is spread across as a power and a force of destruction. और हम लोग चौथी अध्याय में देखेंगे पाप किस प्रकार हर चीज को बर्बाद कर देती है, विनाश कर देती है, किस प्रकार पाप बढ़ता है, वो उसकी व्यापक जो स्थिति है उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। You see, this is something which we don't like to hear, sin. और पाप के बारे में हम सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। But then that's one reality which we can't avoid in our Christian faith and walk. मगर हम लोग ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम लोग अपनी मसीह जीवन में उसको नकार नहीं सकते हैं। At around 3 a.m. on 13th of August 2018, 2018 उसके सुबह 3 बजे अगस्त उसकी तीसरी तारीख को, and a man named Chris Watts killed his 2 daughters who called him hero dad and his wife who was 15-week pregnant. और क्रिस वॉट करके एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों को और अपनी पत्नी को मार डाला। 2 बच्चे जो उनको बोलते थे अपने पिता को या क्रिस वॉट को हीरो डैड करके बुलाया करते थे। A family which should have existed in love, which should have lived out their life in love, was snuffed out by sin. और एक ऐसा एक जीवन या एक ऐसा पारिवारिक जीवन जो स्नेह में प्रेम में जो बढ़ना चाहिए था, वो जीवन जो है वो खत्म हो गया, उसको समाप्त कर दिया When गया। asked why did he do such dastardly act, और जब सवाल पूछा गया ये वो बात हुई कि ऐसा उसने क्यों किया, he said he was overcome with some kind of a force which he couldn't resist or stop. उसने बोला कि मेरे ऊपर एक ऐसी शक्ति का प्रभाव बढ़ गया जिसको मैं रोक नहीं पाया, और उस शक्ति ने, उस शक्ति के प्रभाव के कारण मैंने ये मृत्यु या ये हत्या कर डाली। One of our protagonists in this passage, Cain, faces that animal.
और यही यहाँ का जो कभी जो हमने जो भाग पढ़ा उसका एक किरदार जो है वो भी इस प्रकार के एक हैवानियत को कि वो अपने ऊपर लाते हुए देखता है. Sin is the name of that animal. और ये जो जीव जो है या है ये जो जंतु है उसका जो नाम है पाप है. An animal with an appetite. ये एक ऐसा एक पशु या जीवी है, ये जंतु है जिसको ऐसी भूख लगती है जिसको कभी नहीं कोई भी चीज पूरी नहीं कर सकता. Has an appetite. प्रिय जीजों, पाप जो है उसको भूख लगती है जो कभी नहीं And मिट सकती. its appetite can be satiated through devastation and decimation. That's it. और उसका जो भूख है वो तभी पूरी होती है जब वो अपने सामने बर्बादी को देखता है. When I look at this passage, the word that comes to me is juxtaposition. That is putting two together. जब मैं Side by side. जब इस भाग को देखता हूं तो मैं अंग्रेजी में जो शब्द है जक्सटापोज उसको वो मेरे सामने आता है. जक्सटापोज मतलब दो चीजों को सामने सामने अगल बगल रखना और उस पर उसके साथ उसकी तुलना करना. The passage starts with life and ends with death. यहाँ पर जो भाग है वो जीवन के साथ शुरू तो जरूर होता है परंतु मृत्यु पर आके खत्म होता है. You have you begin with love and you end with hatred. यहाँ पर आप प्रेम से शुरुआत करते हैं मगर आखिरी में ईर्ष्या के साथ आप वहां पर खत्म करते But हैं. what you cannot miss in this passage is worship. परंतु आप इस भाग में एक चीज जो आप देखकर जो चूक नहीं सकते हैं वो है आराधना. Sin is nothing but worship gone wrong. पाप जो है अगर उसकी परिभाषा वो ये है कि आराधना जो है अगर गलत रूप से हो जाए तो उसके पाप कहा जा सकता है. Three things under the devastation of sin to consider this morning. और तीन चीजों को आज हम लोग इस पाप के नीचे देखेंगे या पाप की बर्बादी में तीन चीजों को हम The देखेंगे. development of life was one. पहली आयत में हम लोग जीवन को उत्पन्न होते हुए देखते हैं. Verse 2 to verse 5a is dedication of life. और दूसरी आयत से पांचवी आयत की पहली भाग में हम लोग जीवन को समर्पित होते हुए देखते हैं. 5b to verse 7 is devouring of life. और पांचवी आयत से सातवीं आयत में हम उसी जीवन को खत्म होते हुए देखते हैं, निगले हुए देखते हैं, खत्म हुए देखते हैं. So when you look at verses 1, जब आप पहली आयत को देखते हैं you're looking at the development of life. यहाँ पर आप जीवन की उत्पत्ति को आप देखते हैं. Look at how the writer goes about it. यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार जो लेखक है इसको यहाँ पर बता रहा है. Adam knew his wife. और यहाँ पर लिखा गया है कि जब आदम पत्नी हवा के पास गया She conceived and gave birth to तब Cain. उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया. This verse tells us how life multiplies. और ये आयत जो है हमें ये बताता है कि जीवन किस प्रकार बढ़ता है आगे. Life is meant for development, multiplication. जीवन जो है वो बढ़ोतरी के लिए बहुत आयत के लिए बनाया गया. Life is not meant for snuffing out an end and death. जीवन जो है वो उसको समाप्त करने के लिए या उसको हत्या करके उसको मारने के लिए नहीं बना गया. Now what you read here is when the Bible says Adam knew his wife, it is talking about how Adam has physical relationship with his wife. यहाँ पर जब लिखा गया कि आदम उसकी पत्नी के पास गया तो यहाँ पर एक शारीरिक संबंध के बारे में बताया जा रहा But है. before we get to the conjugal marital relationships, we're going to restate something that we have learned thus far in the book of Genesis. So that sets the backdrop for what we're going to talk today, this morning. आज सुबह जो हम बात करेंगे उसके लिए आपको पहली कुछ बातों को जो मैंने बोला है उसके बारे में वापस आपको लेके जाना चाहता हूं. What we need to understand is that at the core of the universe lies the fatherhood of God, which means that God, a loving God, has created everything that you see and you and me to be placed in the cradle of love. अगर इस पूरे भूगोल का निचोड़ लिया जाए तो वहां पर हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं या परमेश्वर का हृदय जो प्रेम से भरा हुआ है उसको हम वहां पर देखते हैं. When you look at the text that we have considered till now, you know that this father is a loving father. और जितनी भी आयतों को अभी हमने यहां तक पढ़ा आप एक चीज बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि ये जो पिता है वो प्रेम करने वाला So पिता if है. humanity knows anything called as love, it comes from God, not innate in us. It's not intrinsic in us. It has its source. God is the fountainhead of love. मनुष्य जो है जिस प्रकार प्रेम को जानता है वो प्रेम मनुष्य ने नहीं उत्पन्न किया है. ये जो अनुभव जो है वो मनुष्य से नहीं आया है. प्रेम का जो स्रोत है वो परमेश्वर है. परमेश्वर से प्रेम If उत्पन्न we हुआ were to है. believe evolution and if we were to consider that we are just collocation of matter,
how do we express love? Where do we get this emotion called as love? Love comes from eternal God, who is the Father, the core of the universe. अगर हम लोग कर्म गति उन्नति के बारे में अगर उससे हमारा विकास हुआ है, अगर हम उस पे विश्वास करते हैं, तो सवाल जरूर उठता है कि प्रेम कहां से आया? हमने एक दूसरे से प्रेम करना कहां से सीखा? ये जो अनुभव है, ये भाव जो है, ये कहां से आया? When you think about love, love is nothing but an unconditional movement towards the object of love. और प्रेम क्या है? अगर आप प्रेम पूछें तो उसका सरल उत्तर ये है कि आप जिस चीज से प्रेम करते हैं, आप उसके पास खींचे चले जाते हैं, आप उसकी निकट चले जाते हैं. When you look at the creation, the story, the account of creation, you see God unconditionally loving man and placing him in the garden. जब आप सृष्टि की कहानी को पढ़ते हैं, आप वहां पर क्या देखते हैं? आप वहां पर ये देखते हैं कि ये पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता मनुष्य से प्रेम करता है और उस पे कोई प्रकार के वायदे नहीं लगाता, वो बेहिचक प्रेम करता है. Yes, in this passage, death takes its first victim in the physical manner. मगर चौथी अध्याय में इस भाग में हम लोग पाप का पहला शिकार को देखते हैं. But the narrator deftly handles the text. He introduces life in the cradle of love and tells that is the ideal that humanity should have lived up to. प्रिय अजीजों, चौथी अध्याय की पहली आयत में लेखक वहां पर जीवन के साथ शुरू करता है, ये बताने के लिए या हमें ये बताने के लिए कि जो सृष्टि का पूरा मतलब यही था, जीवन था. A birth of a life is not a mechanical process. अब जब अगर आप नई जीवन को उत्पन्न देते हैं, वो किसी विज्ञान से या कुछ आधुनिक चीजें मिलाकर ये जीवन नहीं उत्पन्न होता है. Both Anushka and Nivi, as Shija was carrying them, that every visit to the doctor would say, we can only be doing these things. Rest is in God's hand. जब शीजा 2 बच्चों को लेके जब भी हम लोग गर्भवती होकर जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर एक ही चीज हमें बोलता था कि देखिए, हमारे हाथ में यही सब कुछ है, हम इतना ही कुछ कर सकते हैं, बाकी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है. If God is not love, why bother about birth and life? अगर परमेश्वर प्रेम नहीं है, तो ये जीवन उत्पन्न करना या जीवन से क्या मतलब है? And why would the doctor say God will take care? और ये डॉक्टर जो है वो क्यों कहेगा कि परमेश्वर सबके ऊपर सबका ध्यान रखेगा? In a passage of death where murder happens, the writer starts off with saying Adam knew his wife, which is conjugal marital relationship. यहाँ पर जब चौथी अध्याय में पाप का पहला शिकार या मृत्यु को पहली बार हम जब देख रहे हैं, वहां पर लेखक पहली आयत में शुरू करता है कि आदम अपने हव्वा के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया. By using the word know there, the writer wants to gain our attention to the depth of love. यहाँ पर अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है नो या जानना. आदम अपनी पत्नी को हव्वा को जाना. ये जो शब्द जो जाना जो है वो वहां पर उस प्रेम की गंभीरता या घनिष्ठता को हमें दिखाता है. So in this passage, the word know represents their sexual union, but that very word know, which is the Hebrew word yada, is used for God expressing his love for his people. It's the same word. यहाँ पर अंग्रेजी में जो नो शब्द का इस्तेमाल किया है, KNOW, जो नो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो हिंदी में उसका जो तर्जुमा अलग किया गया है, परंतु वहां पर यादा जो शब्द है वो वही शब्द इस्तेमाल किया गया है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया, जो अपने लोगों को जब उसने याद किया या उनके साथ उन्होंने वाचा बांधी. In this passage, the husband is moving in a union, a physical union with his wife in a deeper relationship. चौथी अध्याय की पहली आयत में आप उस पति को अपनी पत्नी के साथ उस शारीरिक संबंध में मिलते हुए या साथ आते हुए आप वहां पर देखते And हैं. union of merely not bodies, but the union of soul. यहाँ पर सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं है, यहाँ पर आत्मिक या Union. आत्मा के लेवल आत्मिक संबंध भी A है. unique union of love, यहाँ पर एक ऐसा संबंध जो कि प्रेम का संबंध है, where they are no more two but one. जहां पर वो 2 नहीं है परंतु 1 है.
where they are willfully considering each other, wanting to know each other's heart and desire, and respecting each other and moving towards them, each other in love. जहां पर वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की बात जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की आदर करते हैं, एक दूसरे का संरक्षण करते हैं. This is deep level intimacy. प्रिय चीजों, ये बिल्कुल गहरी एक घनिष्ठता की एक संबंध को This is देखते a हैं. union which gives birth to life. ये एक ऐसा संबंध, ऐसा संग है जो जीवन को उत्पन्न करता It's है. not just Cain who is born, it's Abel who is also यहाँ पर born. to केन this world. सिर्फ नहीं है, यहाँ पर अब एबल भी है, उसका भी जन्म होता है. And when you read this passage, you know that love becomes the harbinger of human society. और जब आप इस भाग को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि प्रेम जो है इस पूरे मानवता का आधार कहीं ना कहीं बन जाता है. Look at Eve's comment. यहाँ पर हव्वा क्या बोल रही है? I have a ध्यान से male देखिए. child. यहाँ पर वो कह रही है कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को पाया है. Yeah, that's the right translation. The Hebrew says man. I mean, it's uncanny that a woman who gives birth to a child calls the child man. And that's why the English translators are trying to, reduce the impact of that word. But the whole phraseology here is a little tricky. But what I'm going to do is, I'm just going to consider the Yahweh in that verse. यहाँ पर मैंने यहोवा या यहोवा पे आज हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो पूरा जो कथन है उसमें बहुत सारी बातें मैं आज उस पे. So the narrator puts life and God in the same passage. यहाँ पर पहले आयतों में लेखक जो है वो जीवन और यहोवे को एक साथ जोड़ता है. He is the fountainhead of love and therefore the origin or originator of life. क्योंकि वो प्रेम का स्रोत है, इसलिए वो जीवन का भी स्रोत है. A healthy human society starts with God at the center. प्रिय चीजों, कोई भी समाज अगर मानवीय समाज अगर उसको सही बनना है, दुरुस्त बनना है, तो उसमें परमेश्वर उसके मध्य में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए. And a healthy human society starts with a healthy home. और अगर आप एक अच्छे समाज का, स्वस्थ समाज को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक स्वस्थ परिवार होना है. Advancement, development cannot happen only through political system, democratic system, institutions like the courts or educational institution. Development, human development happens in the cradle of love. मनुष्य का अगर विकास होना है तो वो अलग अलग प्रकार की पाठशालाएं खोलकर, आधुनिक यंत्रों को यांत्रिक तरीके से बातों को कर वहां पर मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है. अगर मनुष्य का विकास होना है तो वो प्रेम में ही हो सकता है, प्रेम की झोली में ही मनुष्य का विकास हो सकता है. At the peak of their career, Beatles, the band, they sang one song which was pretty famous. All we need is love. Yes, true. All we need is love, but not a fluffy teddy bear, romantic Valentine love. What you need is a love which moves with a sense of sacrifice towards the other. A love where you have death at the center of love. हम जब बीटल्स जो है उन्होंने अपने करियर के चरम सीमा जब वो पहुंच चुके थे, वहां पर उन्होंने गीत लिखा कि हमें और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम की जरूरत है. ये जो आज जो हम लोग प्रेम दे रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि टेडी बेयर बांटने से, कार्ड बांटने से बढ़ता है. प्रेम जो है वो एक ऐसा घनिष्ठ संबंध है जहां पर एक दूसरे के लिए आप दर्द को सहते हैं, एक दूसरे के लिए आप बलिदान देते हैं, तभी उस घनिष्ठता में, उस प्रेम को यहां पर बताया जा रहा है. Sin opposes love and therefore sin is in opposition for life. और यहाँ पर पाप जो है वो प्रेम का विरोध करता है, और इसलिए पाप जो है वो जीवन का भी विरोध करता है. Sin has a desire. क्योंकि ये जो पाप है उसकी एक बहुत बड़ी इच्छा है. We will talk about sin's desire a little while later. अगर हम पाप का जो क्या इच्छा है उसको थोड़ी देर में हम देखेंगे. But when life is there, then life requires certain action. When life comes into existence, your and my life requires certain action, and in that action you and I find our meaning to life and purpose to life. जीवन अगर जब उत्पन्न होती है तो जीवन में क्रिय होना बहुत जरूरी है, या क्रियाशील होना बहुत जरूरी है. अगर आप क्योंकि आप क्रियाशील नहीं होंगे तो आपका जीवन का क्या उद्देश्य है आप उसको नहीं समझ सकते हैं. So you see development of life in verse 1, and now you're going to see the dedication of life in verses 2 to 5a. यहाँ पर पहली आयत में हमने
जीवन को की उत्पत्ति को देखा, अब दूसरे आयत से 5वीं आयत के पहले भाग में आप उस जीवन को समर्पित होते हुए Now, देखते हैं। Cain and Abel pick up their profession. यहाँ पर काइन और जो एबल जो है उन्होंने अपना अपना व्यवसाय को उठाया। One is a farmer, as true to the curse that was laid down for Adam, that you go out and you farm and you by the sweat of your brow you eat and live. So he's true to that part of the promise. और of यहाँ the curse. पर जिस प्रकार उसके ऊपर आदम के ऊपर श्राप गया था कि तुम्हें जमीन को उगाना पड़ेगा या भूमि पर खेती करनी पड़ेगी, तो अब कैन जो है वो भूमि का खेती करने वाला बन गया और हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया। So they dedicated workers. Cain is hard worker. Abel is also hard worker. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये दोनों काफी श्रम करने वाले कार्य करने वाले लोग हैं। You see, life requires a purpose. They have a purpose. They are workers. यहाँ पर वो कार्य करने वाले या व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं। यहाँ पर अगर जीवन का उद्देश्य अगर आपको मिलना है तो आपको काम करना जरूरी है, परंतु they are dedicated to something more. Work is not enough for their dedication. यहाँ पर सिर्फ वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो काम के साथ कुछ और भी कर रहे हैं। That is worship. यहाँ पर वो आराधना को हम यहाँ पर Read with देखते me. हैं। In the course of time, Cain presented some lands produced as an offering to the Lord. And verse 4, Abel also presented an offering, some of the firstborn of his flock and their fat portions. कुछ दिनों में पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि का उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों से कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। Now, in the juxtaposition of life and death, you have an axis here that you see in this story. जहां पर मृत्यु और जीवन एक साथ लगाया गया है और आप उसको देख रहे हैं, यहाँ वहां पर आप एक प्रवेश को भी यहाँ पर देख सकते हैं। Axis as in that axis. Okay. that how do you, I don't know about Hindi though. An axis which keeps them pointed upward to God. और यहाँ पर आप एक ऐसी एक दिशा को देख रहे हैं जिसके द्वारा वो परमेश्वर को देख पा रहे हैं। That axis is worship. और ये जो दृष्टिकोण है उसको आप आराधना कह A सकते हैं। slight tilt in that axis, और अगर उस दृष्टिकोण में अगर कोई बदलावट आती है, things go awry. वहां पे सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, Devastation. और पूर्णतः बर्बादी हो जाती है। You know, when you study geography, you know that the earth is on a certain axis. जब आप ज्योग्राफी या भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा जो अर्थ जो है या धरती जो है वो एक एंगल में लगाया गया, एक एक्सिस पे रखा गया। And if there is any more tilt to this angling, और ये जो एक्सिस जो है या एंगल में अगर थोड़ी सी भी बदलावट आती है, you know what is going to happen? आपको पता है क्या होगा? Everything gone. पूरा संसार बर्बाद हो जाएगा। Everything gone. पूरा संसार बर्बाद हो सकता It है। is so critical that the earth stays on that axis. इस धरती को जिस एंगल पे लगाया गया या रखा गया है उससे वो 1% भी बदल नहीं सकता। Human beings have an axis in them. और इसलिए मनुष्य के अंदर भी ये एक्सिस या ये दृष्टिकोण बनाया It's गया है। called worship. और ये जो दृष्टिकोण है वो उसको आराधना कहा We जाता are है। creatures. He is a creator. We are created by him. Therefore, we are created to worship him. और हम लोग क्योंकि सृष्टि है वो सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया है, इसलिए हम उसकी आराधना उसकी आराधना करना जरूरी है। Only true worship can build true relationship with God. प्रिय जीजो, सच्चा आराधना जो है वही आपको एक सच्ची संबंध परमेश्वर के साथ बना सकता And है। only true relationship with God can build a true relationship with community. अगर आप परमेश्वर का सही संबंध बनाते हैं तभी आप इस समाज के साथ सही संबंध बना सकते Now, हैं। in this passage, you don't know who told them to worship. यहाँ पर इस भाग में ये लिखा नहीं गया या ये नहीं बताया गया है कि इनको आराधना करना किसने बोला या किसने सिखाया। All of a sudden, people teach like this, that Adam and Eve became believers and they taught Adam and Cain and Abel to worship. यहाँ पर The narrator doesn't mention any of those things. कुछ लोग ये बोलते हैं कि जैसे ही उनको वाटिका से बाहर निकल गया वो आदम और हव्वा विश्वासी बन गए। विश्वासी बनने के बाद उन्होंने बच्चों को विश्वास में उत्पन्न किया और उनको ये सब बातें सिखाई। The narrator doesn't say that. परंतु यहाँ पर लेख लिखने वाला या इस भाग में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। I believe that it is instinctive in every human heart to offer worship
to have that kind of dedication. मुझे लगता है कि हर मनुष्य में ये एक अंदरूनी एक इच्छा होती है कि आराधना करना या किसी चीज की आराधना करना. Worship is a comprehensive action of our mind, soul, body towards how we lead our life or in relationship with God. और आराधना जो है वो वहां पर हमारा मन जो है और मन और तन और आत्मा एक साथ जुड़कर किस प्रकार परमेश्वर के साथ उसका संबंध है उसको तय करता है. And that gives us meaning, purpose and identity. और ये आराधना के साथ और इस संबंध के साथ हमारे जीवन में सही मात्रा में क्या उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है वो सामने आता है. G.K. Beale, let me quote. People don't like me quoting too much, so just 3 lines. Please bear with me. Meet here. God has made humans to reflect Him. परमेश्वर ने मनुष्य को उसका प्रतिबिंब बनने के लिए बनाया है. But if they do not commit themselves to Him, मगर अगर ये मनुष्य उसको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं करते they हैं, will not reflect Him but something else in creation. तो वे लोग परमेश्वर को प्रतिबिंब ना करके किसी और चीज का प्रतिबिंब बन At जाते the हैं. core of our beings, हमारे अंदरूनी भागों में we are imaging creatures. हम लोग ऐसे जीव हैं जो छवि पर सब कुछ सबकी छवि बनाते हैं. And Beale says it's not possible to be neutral on this issue. We either reflect Creator or something in creation. यहाँ पर GKB जो है वो इस बात को कहता है कि आप दोनों नाव पर पैर रख के नहीं चल सकते हैं. या नहीं तो आप सृष्टिकर्ता का प्रतिबिंब बनेंगे या इस सृष्टि में किसी चीज का प्रतिबिंब बनेंगे. Because you're creatures for imaging, you're creatures for worship, you're creatures for dedication. आप क्योंकि हम जो जीव हैं हम लोग आराधना के लिए बनाए गए हैं. हम जो जीव हैं दूसरों की छवि प्रतिबिंब करने के लिए बनाए गए For हैं. we become what we worship. क्योंकि हम जिसका आराधना करते हैं हम वही चीज बन जाते हैं. Life requires worship as a default action. जीवन जो है आराधना करना जो है वो बिल्कुल बिल्कुल तत्पर बात होती है. If you are a living being, अगर आप एक जीवित व्यक्ति हैं, you are a worshiping being. तो आप किसी ना किसी चीज का आराधना करने वाले व्यक्ति हैं. Now that could be God Himself तो वो जो चीज है वो शायद परमेश्वर हो सकता or है something else. या इस संसार में मिलने वाली कोई भी चीज हो सकती Between है. Cain and Abel, you see that axis of worship. आप यहाँ पर जब हाबिल और काइन के बारे में पढ़ रहे हैं आप वहां पर इस आराधना की इस जो लाइन को या दृष्टिकोण को आप यहाँ पे देख रहे हैं. And you see that axis tilting in the life of Cain. और यहाँ पर आप काइन के जीवन में ये जो दृष्टिकोण को आप बदलते हुए देखते हैं. Now, few things to keep in mind in this passage. कुछ चीजों को यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है. Narrator does not mention the reason for disapproval of Cain's offering. यहाँ पर लेखक जो है काइन के जो आराधना था उसको परमेश्वर ने क्यों तिरस्कार कर दिया वो हम नहीं जानते. And I'm sure, I'm 100% sure, it has nothing to do with the blood sacrifice which Abel had offered. That cost the approval on Abel's part and not on Cain's part. यहाँ पर मैं इस बात से 100% इस बात को जानता हूं और मानता हूं कि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्योंकि हाबिल ने भेंट बलि चलाई तो इसलिए मैं उसके आराधना को मानता हूं. और काइन ने मुझे फल फूल दिए इसलिए मैं उसके आराधना को नहीं मानता. Because the word for it is not the word sacrifice used there, it's the word offering, presentation. If you notice it clearly, that word for sacrifice which referred to the burnt sin offering is not the word used here. यहाँ पर जो भेंट का शब्द इस्तेमाल किया गया है बलि का शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है. It is more of an expression of faith. यहाँ पर विश्वास को दिखाते हुए ये दोनों जन ये काम को It's करते हैं. more of dedicating his life. Abel is dedicating himself to God. यहाँ पर यहाँ पे हाबिल जो है वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित It कर is रहा है. falling towards God in response of knowing who He is. यहाँ पर परमेश्वर को मानना जिससे के द्वारा वो परमेश्वर को जान पा रहा We है. pick up a clue in the book of Hebrews. हम लोग इब्रानियों में यहाँ एक बात को यहाँ पर देखते It हैं. is written about Abel's offering that by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain did. यहाँ इब्रानियों में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हाबिल ने काइन से एक बेहतर भेंट चढ़ाया. What is faith? विश्वास क्या है प्रिय Faith is जीजो? not jumping off the bridge
and saying, God is going to save me. विश्वास ये नहीं कि आप कहीं ऊंचे जगह से कूद जाएं और कहें, हे परमेश्वर मुझे बचा लो. Faith is knowing that God lives. विश्वास ये है कि आप इस बात को तय रूप से जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है. Faith is like this. Sun rose today. It is shining in the sky and sun will rise tomorrow. That is faith. विश्वास ये है कि आप जानते हैं कि सूरज आज उगा है, वो वहां सूरज आज बिल्कुल प्रचंड है और कल सुबह भी सूरज उगेगा. Rising of the sun has its evidence today. ये सूर्योदय का जो तथ्य जो है वो आज आप देख रहे हैं. There is evidence, and Paul writes about the evidence, the general revelation. Look at the creation. It speaks of the glory of God, and there is enough evidence of God in the creation. और इस बात को लिखते हुए वो रोमियो में लिखते हुए ये बात को कहता है कि इस संसार में यह सृष्टि जो है इस बात का प्रमाण दिए जा रहा है कि इसके बिना पीछे परमेश्वर है, एक सृष्टि करता है. Faith is not first compliance. Faith is first love towards God. It's knowing God. विश्वास जो है प्रिय जीशु सबसे ऊपरी परमेश्वर से प्रेम करना है या परमेश्वर को जानना है. Faith is your heart's disposition to who God is. विश्वास जो है वो आपका मन का, आपके हृदय का प्रतिक्रिया परमेश्वर के लिए क्या है उसको बताता है. After having given them the book of Leviticus, और लेवी व्यवस्था देने के बाद Keshri called me the other day saying that so many sacrifices in Leviticus, why on earth? और केशरी ने मुझे उस दिन फोन किया, कहा कि लेवी व्यवस्था में ये इतने सारे भेंट बलियां क्यों लिखी गई हैं? After all that listing that God does this, kill that, shed blood here, drop blood there, all of that, he goes on to say, I don't need your sacrifices. I don't need the sacrifices of bulls, goats and animals. और लेवी व्यवस्था में आप देखें तो यहाँ पे बलि, उसका बलि, वहां पे खून डालो, वहां पे खून चढ़ाओ. इसके बाद आगे जाते परमेश्वर खुद कहता है कि मुझे भेंट बलियों की कोई जरूरत नहीं है. What do I want? मुझे क्या चाहिए? A broken heart. एक टूटा हुआ हृदय मुझे चाहिए. God wants heart. First. परमेश्वर पहले आपके हृदय को जानना. You want to know this God? अगर आप इस परमेश्वर को जानना चाहते हैं, give him your heart, not your compliance first. आप अपने हृदय को इस परमेश्वर के हाथ में सौंपें. ये नहीं कि मैं आपकी सारी बात मान लूं, ये compliance नहीं है. When you look at true religion and true worship, जब आप एक सच्चे धर्म को देखते हैं और सच्चे विश्वास को देखते हैं, true religion or true worship doesn't worship God to gain something from God. It worships God for who God is. सच्चा धर्म और सच्चा विश्वास आराधना इसलिए नहीं करता जिससे कि आराधना करने के बाद आप कुछ परमेश्वर से प्राप्त करें. वो आराधना इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है परमेश्वर My dear church, your God, the God of the Bible, is not an errand boy. He's not a waiter. He's not a genie. He is God Almighty. प्रिय जीजो, आपका जो परमेश्वर जो है वो इधर उधर भागने वाले, छोटे छोटे काम करने वाला एक व्यक्ति नहीं है. वो सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. Notice how subtly the narrator says, but he did not have regard. You know, when we read this passage, we always think there is something wrong with the offering, right? Right? But there it is in the passage. God is telling Cain, I don't have regard for you, therefore your offerings makes no sense. यहां पर Verse 5. 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे. परंतु केन ने और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई. Problem is not with the offering, it's with the offerer. Problem is not with the offering, it is with the one offering it. यहाँ पर बलि क्या है उस पर यहाँ पर बात नहीं हो रही है. बलि चढ़ाने वाला उसके हृदय पर सारी बात यहाँ पर हो रही है. This offering has no dedication to God. क्योंकि ये जो बलि जो चढ़ाई गई है उसके लिए परमेश्वर के ऊपर कोई निर्भरता है ही नहीं. This offering has no value because it has no love behind it. क्योंकि इस बलि में कोई बात ही नहीं है क्योंकि इसके पीछे प्रेम नहीं है. Because true worship is response of love of human soul to an eternal loving God. एक ये सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास ये है जहां पर आप इस सच्चे प्रेम को जानकर आप अपने जीवन को उसके प्रति
दे देते हो या समर्पित कर देते हो। The writer lays on little hints here and there in the passage. यहाँ पर जो लेखक जो है लिखने वाला है इधर उधर छोटी दो तीन प्रमाण को हमारे सामने He रखता है। qualifies Abel's sacrifice, saying that he brought the firstborn and the fat portions. और यहाँ पर हाबील के बलि को कहते हुए कहता है कि वो अपने पहलोटों को, अपने बलि, अपने भेड़ों के पहलोटों को और मांस को, चर्बी को लेके आया। But for Cain, he just says he bought some fruits, not even the first fruits. और परंतु काइन के लिए वो कहता है कि वो उपज से कुछ भेंट को लेके Now, आया। I'm not going to make much of those observations. You want to gather something, please do. यहाँ पर ये जो चीजें have the लिखी freedom. गई हैं उस पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। But I want to tell this morning, the disapproval was for Cain's heart. यहाँ पर एक चीज आपको ये बोलना चाहता हूँ, बलि क्या था उसके लिए उसकी मनाई नहीं हुई God है। is not comparing Abel's sacrifice with Cain and saying, wow, this one smells really, really good. I hate that one. That has fouls. That's not. He's not stacking up one against the other. यहाँ पर जब बलि की बात या भेंट की बात हुई तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला, अरे हाबील के उस भेंट को देखो, इसमें ये इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, काइन का जो बलि है मुझे पता नहीं उसमें क्या किया है। प्रिय जीजो, ऐसा परमेश्वर ने यहाँ पर नहीं किया है। My dear friends, in Cain's case, it's the sin, it's worship gone wrong. That is what is happening. परंतु जब आप काइन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं, आप इस बात को देख रहे हैं कि वो एक ऐसा आराधना जो गलत हो गया है। When worship goes wrong in our life, जब हमारे जीवन में आराधना गलत हो जाता when है, God is not worshipped for who he is, not for what he gives us. अगर परमेश्वर, हम उसकी आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कौन है, इस अगर हम उसकी लिए आराधना If you're करते thinking हैं, that you're going to worship God and he's going to bless you with you see, Abel is offering everything he has. He's putting his life at risk. Firstborn of his flock. Now, we are not shepherds, so we don't understand what that means. But if you were to ask the shepherds, they will keep the firstborns and the fat ones because that's the healthiness of the flock. And he is ready to risk his life because he loves God. जब आप हाबील के उस बलि को पढ़ते हैं तो वो अपने जीवन को दाव पे लगाने के लिए यहाँ पे तत्पर है, क्योंकि उस जमाने में पहलौठों को देना बहुत बड़ी बात है। या जब आप चरवाहों के बात करते हैं तो वो अपने पहलौठों को कभी नहीं देते हैं। और दूसरी बात, कोई भी चीज, जानवर को मारना, उन मवेशियों को मारना, उनका धन कम करने की बात है, वो अपने जीवन को यहाँ पर दाव पे लगा रहा है। So it is not what he got from God. हाबील जो है यहाँ पर ये नहीं इंतजार कर रहा है कि परमेश्वर उसको बदले में क्या This is देगा। not a religion of investment. I give 1,000, God will give me 1,000, 10,000 back. यहाँ पर एक ऐसा धर्म नहीं है कि मैं 1,000 रुपए परमेश्वर के लिए दे रहा हूं तो हे परमेश्वर मुझे उसको 10,000 बढ़ा That के is दे a दो। false religion. ये जो धर्म, ये गलत धर्म है। If you are a Christian thinking that God is going to shower you with 100 blessings on 100-fold, and that is why you will worship him, you are sadly mistaken. अगर आप यहाँ पर ऐसे मसीहत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मसीह बन रहे हैं, ये सोचते हुए कि मैं परमेश्वर की आराधना इसलिए करूंगा क्योंकि आराधना करने के बाद परमेश्वर मुझे बहुत आयत से आशीष करेगा। Because in this case, when worship goes wrong, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आराधना गलत हो गई है। you see, Cain was a good man. यहाँ Come on, guys. काइन जो है यहाँ पर ठीक ठाक आदमी है, He's a religious man. यहाँ पर वो धर्मी व्यक्ति But है, he is a man whose God is worship wrong. परंतु वो धार्मिक होने के बाद भी उसका जो आराधना जो है वो गलत हो And गया। when you get your worship wrong, जब अगर आप अपनी आराधना गलत हो जाती है, when the axis tilts, तो जो आपका जो दृष्टिकोण है वो गलत हो जाता है, sin takes its position in your life. और उसके बाद जो पाप के जीवन में पाप हावी हो जाता है। Sin has a desire. क्योंकि ये जो पाप जो है उसकी एक बहुत बड़ी Sin इच्छा है। has an appetite. ये जो पाप जो है उसको भूख लगी होती है, An appetite to devour you whole and leave nothing of you. ये जो भूख जो है वो तभी पूरी होगी जब वो आपको पूर्णतः निगल जाएगा। Third point for the morning. इसलिए तीसरी बात को आज हम सुबह देखेंगे। Sin which devours life. ये एक ऐसा पाप जो जीवन को निगल जाता है। Look at verse 6 and 7. 6वीं आयत और 7वीं आयत को देखें। God said to Cain, यहाँ पर परमेश्वर कैन से कहता है, why are you so कि furious? तुम क्रोधित क्यों हुए हो, Why do you look so और despondent? तुम्हारे मुंह का उदासी क्यों छा गई है। If you do what is right, won't you be accepted? यदि तू भला करे तो तू क्या
तेरे भेंट ग्रहण ना किया जाएगा, if you do not do what is right. और यदि तू भला ना करे, Sin is crouching at your door and its desire. Sin has a desire. What is it? For you. For you. For you. और तू पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा क्या होगी? तेरी ओर होगी। Sin devours life. प्रिय चीजों, पाप जो है वो जीवन को निगल लेता है। Sin is depicted as an animal which crouches. यहाँ पर पाप को एक जंगली जानवर के रूप में दिखाया गया And है। Keller says Cain has done a gross underestimation of this animal called sin. और यहाँ पर केलर जो है इस बात को कहता है कि काइन ने जब विश्लेषण किया तो इस पाप को बहुत छोटा माना। Cain is not a terribly bad sinner, you see. He's यहाँ a पर religious guy. यहाँ पर कैन जो है यहाँ पर अभी तक बहुत बड़ा पापी नहीं है। He's not वो in- भले धार्मिक व्यक्ति He's है। not involved in any antisocial activities. यहाँ पर ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा जो समाज को बुरा कर दे, He's a बना दे। simpleton. He's a farmer. He's a pretty good farmer. एक खेती करने वाला है और अच्छा खेती करने वाला है, And that to a religious guy. और उसके ऊपर एक धार्मिक व्यक्ति भी है And an ordinary guy. और एक साधारण व्यक्ति है। You don't find him promiscuous and swindling money. He is just straight guy. और यहाँ पर आप उसको यहाँ पर पैसे का हेरा फेरी करते हुए या व्यभिचार करते हुए ऐसे नहीं पाते But हैं। an angry guy. परंतु वहां पर आप उसको एक क्रोधित व्यक्ति करके देखते Angry हैं। at God. वो परमेश्वर पे क्रोधित है Which he takes down on the image of God. और वो परमेश्वर की छवि के ऊपर उस क्रोध को पूरा करता More है। on that later. Selfishly wants God's blessing, but not God. वो यहाँ पर वो सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर की आशीषों को चाहता है परंतु परमेश्वर को नहीं He चाहता है। coveted what was Abel's. वो ऐसी चीज की चेष्टा करा जो हाबिल का था। What was Abel's? हाबिल का क्या था प्रिय जीजों? What is that of Abel that he wanted? हाबिल का ऐसा क्या था जो काइन यहाँ पर चाहता है, या वो The divine approval, the regard of God. यहाँ पर हाबिल को मिला हुआ परमेश्वर की सम्मति जो है या परमेश्वर की आशीष को यहाँ पर काइन लोभ कर रहा है उसका। A deadly sin, coveting, a deadly sin. लोभ जो है वो एक बहुत ही खतरनाक एक पाप है। When you covet, you don't. That's one sin which has no satiation levels. अगर आप लोभ करते हैं तो लोभ एक ऐसी चीज है जिसकी भूख कभी नहीं मिटाई जा सकती। Did you know the moment the axis shifts from worship of God, which is the first commandment, what is broken is the 10th commandment, and the 10th commandment is do not, thou shalt not. यहाँ पर 10वें नियम को अगर आप देखेंगे, पहला नियम को यहाँ पर उल्लंघन करते ही लेखक जो है 10वें नियम पे पहुंच जाता है जहां पर लिखा है कि तुम लोभ नहीं करोगे। When you destroy, when you have disregard for the first one, अगर आप परमेश्वर की आराधना का नियम को तोड़ देते then हैं you have entered the coveting zone. तो आप उसी समय लोभ के उस जगह पर उस प्रभाव में आप प्रवेश कर For जाते हैं। coveting, it forsakes love for God and disposes one to hate their neighbor. और लोभ क्या है? आप वहां पर परमेश्वर से घृणा करने लगते हैं और उसके साथ साथ आप अपने पड़ोसियों के या अपने साथ के लोगों के साथ भी घृणा करने लगते Coveting हैं। pulls the heart down to the pit of self-seeking and the muck and mire of envy, slander, adultery, pride, dishonor, murder, thievery, idolatry. और जब आप लोभ करते हैं तो आप लोभ जो है आपका हृदय जो है सबसे निचले स्थानों पे ले जाता है। उसके बाद आपके जीवन में सिर्फ हत्या, लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के साथ गलत करना, यही सारी चीजें आपके हृदय में घूमती रहेंगी। Oh Cain, your access for worship has shifted. यहाँ पर केन को बोला जा रहा है कि केन, तुम्हारा जो दृष्टिकोण जो था आराधना के लिए वो बदल गया है। Sin needs the little of you. जो पाप ने आपको छोटा बना दिया है, I need, says God, the whole of you. यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूर्णतः चाहता हूं। Crouching behavior is seen in big cats, the felines. जब आप यहाँ पर जो बड़े बड़े या आप किसी भी शेर को देखेंगे तो जिस प्रकार वो चलता है, It's an ambush attack on the prey. तो वो दबे पांव चलता है और एक सेकंड में वो
दूसरों के ऊपर आक्रमण कर And देता when है। if you see tiger hunting, it's elusive. It doesn't look big. It crouches. It pushes its body backwards. And when it pounces, that's when you see the enormous size and the weight and the scale of this जब भी animal. आप शेर को शिकार करते हुए देखेंगे तो शेर हमेशा अपने पूरे शरीर को ऐसे दिखाते हुए शिकार नहीं करता है। शिकार करने से पहले वो अपने आप को बिल्कुल छोटा बना देता है, एक अपने आप को सम्मिलित कर लेता है और दबे पांव चलता है। जैसे ही वो शिकार को देखता है, जब वो आक्रमण करता है या कूदता है, तब आप उस शेर के उस महानता को, उसके विराटता को आप वहां पर देख सकते हैं। You know why God says it's desirous for you? यहाँ पर परमेश्वर क्यों कहता है कि उसकी इच्छा तुम्हारे लिए Because है? it wants to devour you. वो ये कहता है क्योंकि वो तुमको निगलना चाहता है। Because sin is addictive. क्योंकि जो पाप जो है वो अगर आपने एक बार कर लिया तो आप बार बार करेंगे। Sin is addictive in nature. पाप जो है उसकी लत लग जाती है। And when it is addictive in nature, it is predatory in nature. और जब वो पाप की लत लग जाती है तो पाप जो है वो आपको निगलने लगता है या खा जाता है। My dear friends, प्रिय don't चीजों, be fooled. Don't be fooled. आप मूर्ख ना बने। Sin can find a little spot in your life. पाप जो है वो आपको आपके जीवन में छोटी सी बात को ले जाएगा। You can continue to come to church. आप उसके बाद कलीसिया में आने लगे, You can continue to do your quiet time. आप अपने उसके बाद बैठकर क्वाइट टाइम करते रहेंगे। You can continue to do whatever dedications that you have done. जो कुछ भी आपने बोला है, समर्पित किया, आप उसको करते रहेंगे। But sin is for real. मगर पाप जो है वो सच्चाई है आपके जीवन की। A slight shift in the axis of worship. एक आपके दृष्टिकोण जो परमेश्वर और आराधना के लिए था, वहां पर थोड़ा सा बदलाव। You see, when a flight is on a flight plan, अगर आप एक हवाई जहाज को देखते हैं उड़ते हुए, तो वो एक फ्लाइट प्लान में होता है। and if there is a slight deviation, even if there is a slight deviation, by the time the flight reaches its destination, it would have overshot its destination completely. तो जब हवाई जहाज जो उड़ता है, अगर उसके जो मान्यत जो उसका जो राह है, अगर उससे वो थोड़ा सा भी अलग हो जाता है, जब तक वो अपने गंतव्य में पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो उसका गंतव्य अलग हो जाता है। Look at Cain's response. यहाँ पर आप काइन के उत्तर को जरा देखें। Look at Cain's response carefully. काइन के उत्तर को देखें। What is it? यहाँ क्या कहता है? Anger. वो क्रोधित है। The second one. दूसरा, Depression. वो दुखी है, उदास है। I'm not looking down at people who are depressed and going through depression. But that too, my dear friends, is an axis gone wrong. It's an axis gone wrong. Frustrations, anger. It's your axis gone wrong. जब आपके जीवन में क्रोध आता है, आपके जीवन में बहुत समय तक आप उस उदासीनता में रहते हैं। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं जो इस उदासीनता से जूझ रहे हैं, मगर इस बात को याद रखें, उदासीनता जो है और क्रोध जो है वो क्या है? जब आपका जो दृष्टिकोण आराधना के लिए अलग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आपके जीवन में और कुछ नहीं बचता। आपके जीवन में उदासीनता और क्रोध भर जाता है। reaches out to Cain. यहाँ पर परमेश्वर वो काइन के पास जा रहा है। Oh, divine disapproval for Cain is God's love for Cain. यहाँ पर जब परमेश्वर उसको ईश्वरीय रूप से मना करता है या उसको उसकी भेंट को मानता नहीं है, वो परमेश्वर वहां पर उसको प्रेम दिखा I रहा see है। God loving Cain more than Abel. यहाँ पर परमेश्वर हाबिल से ज्यादा कैन से प्रेम कर रहा This है। is that one sheep which is lost and after whom the good shepherd is going. यहाँ पर वो एक ऐसा भेड़ है जो खो चुका है और ये चरवाहा जो है उसको ढूंढने के लिए जा रहा And है। here you have a man who wants divine approval, divine blessings and divine everything, but not divine God. यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ईश्वरीय सम्मति को चाहता है, ईश्वरीय आशीष को चाहता है, परंतु वह परमेश्वर को नहीं चाहता है। You see the axis shifting now. प्रिय चीजों, यहाँ पर आप उस दृष्टिकोण को बदलते हुए देख रहे You हैं। see the anger rising. यहाँ पर आप उस क्रोध को बढ़ते हुए देख रहे हैं। The root of sin is shifting of the axis of worship from God to something or someone else. अगर पाप का जड़ को अगर पूछे तो उसका ये मतलब है कि परमेश्वर से हटकर आप किसी और चीज को मानना शुरू कर Are चुके you हैं। finding it difficult to love people? प्रिय चीजों, क्या आप अपने जीवन में दूसरों से प्रेम करना, सच रीति से प्रेम करना, आप उसको मुश्किल
मानते हैं? Are you finding it difficult to love people? क्या आप अपने जीवन में लोगों से प्रेम करना मुश्किल मानते हैं? It is not because they are too difficult to be loved, प्रिय चीजों, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही अजीब प्रकार के लोग हैं जिनसे प्रेम करना मुश्किल है, but it is because you and I have got our access wrong. वो इसलिए मुश्किल बन रहा है हमारे लिए क्योंकि आप और हमारा जो दृष्टिकोण है, जो एक्सेस है, वो गलत हो गया है। Cain fails to see the power of sin over his heart. यहाँ पर काइन जो है वो पाप का जो भार जो उसके हृदय पर है उसको देखने में विफल हो जाता है। The real question here this morning प्रिय अजीजों, सवाल आज ये है is not what we are doing, आज कि हम क्या कर रहे हैं, but वो नहीं, what God we are worshiping. हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। Sin is not the end of all. प्रिय चीजों, पाप जो है सबका अंत नहीं है। God reaches out to Cain. यहाँ पर परमेश्वर काइन के पास बातचीत करने जा रहा It है। is not like, religion tells you what religions tell you. आप धर्म क्या आपको बताता है? Become good and God will favor you. तुम बड़े अच्छे बन जाओ फिर परमेश्वर तुम पे आशीष करेगा। You see, God picks to have a conversation with who? यहाँ पर देखिए परमेश्वर किसके साथ बातचीत कर रहा है? With Cain. यहाँ पर कैन के साथ बात कर रहा है। That is because God wants to tell Cain, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर उसे बताना चाह रहा है the battle is not lost. कि तुम्हारा जो जंग जो है वो खत्म नहीं हुआ है। You can fight. तुम लड़ सकते हो। You look at me. तुम मुझे देखो। But this God of the Bible परंतु प्रिय चीजों, ये जो बाइबल का जो परमेश्वर है comes down again to the sinner. वो फिर से इस संसार में पापियों के वास्ते आता है। Right, in this passage is warning Cain. यहाँ पर वो परमेश्वर कैन को समझाना चाह रहा है That you can rule over sin. कि तुम पाप के ऊपर You can rule over कि sin. तुम पाप के ऊपर प्रभाव कर सकते हो If you look at me. अगर, परंतु करने के लिए तुम्हें That मुझे देखना is पड़ेगा। the repeated theme of the Bible. यहाँ पर बार बार बाइबल का अगर तथा वस्तु देखा जाए तो ये हम ढूंढ सकते God is हैं। moving in love towards undeserving sinners. यहाँ पर कि परमेश्वर जो है वो पापियों की तरफ खींचा चला In the जाता है। paradise lost, God moved to Adam and Eve, and now God moves to Cain, who is a sinner. जहाँ स्वर्ग जो आदम बगीचे में खो चुका था, वहां पर परमेश्वर आदम और हवा के पास जाता है, यहाँ पर कैन के पास आता है। In Jesus, we see love and desire to know God. और हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को जानने की इच्छा को हम देख सकते He हैं। was one with the divine approval, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको पूर्ण ईश्वरी सम्मति मिली about whom थी। the Father declared, this is my begotten Son in whom I am well pleased. और वहां पर स्वर्ग से पिता की आवाज उसके ऊपर आती है कि मेरा इकलौता पुत्र है जिसमें मैं पूर्णता प्रसन्न हूँ। You see dedication in the life of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह में वो समर्पण को देखते He हैं। too brings an offering, वो भी एक बलि को लाता है, not a lamb, वो एक भेड़ को नहीं not लाता a है, fat portion, वो चर्बी नहीं लेके not आता है, fruits of the harvest. वो फल फूल को नहीं It लेके was आता है, himself, वो अपने आप को लेके his आता है। own life as an offering and sacrifice. वो अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में पेश करता है। All because God so loved the world. ये सब कुछ क्योंकि परमेश्वर पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम What किया। should hit us about the cross this morning is प्रिय चीजों, आज सुबह जब हम उस क्रूस को देखते हैं तो एक चीज जो हमें झंझोड़नी चाहिए, the sacrifice on the cross was accepted, जो क्रूस पर जो बलिदान हुआ वो परमेश्वर ने माना, but the offerer was abandoned to desolation and forsakenness and hell. बलि मानी गई परंतु पिता ने बलि देने वाले को तिरस्कार कर दिया, उसको छोड़ दिया, So that those who believe on him जिससे कि जो कोई उस पे विश्वास करे will carry divine approval on them. वो अपने ऊपर ईश्वरी सम्मति को प्राप्त करें। My dear church, प्रिय जीजों, what is our worship this morning? आज सुबह हमारी आराधना क्या What है? is your worship of your personal life? आपकी व्यक्तिगत जीवन की आराधना क्या May है? this word train your heart towards the right objects of our love and worship. आज का वचन आपको इस बात को मनाए जिससे कि आप सही चीज को और सही व्यक्ति को देखने में तत्पर हो जाएं। धन्यवाद। अपनी बुद्धि के चट्टान का
ऊंचे स्वर से गा, अपनी बुद्धि की चट्टान था। जयकार करे, धन्यवाद करते हुए उससे शांत गाए। भजन गाते हुए